Hello friends, welcome to my YouTube channel Learning India Neeraj Gupta. So in this video we are going to discuss about the important chemical reactions and equations of class 10. So generally we faces a lot of problem while solving the questions like MCQ or the HOTS question because we do not remember the chemical reactions and equations because it is too tough to remember the chemical reactions. Okay. So in this video we are going to discuss about the important chemical reactions and equations. Chemical reactions and equations, important chemical equations. Okay. So you have studied and we all have studied about evolution of gas. This topic. Okay. Evolution of gas. So in evolution of gas, what we generally do. So what are the basic chemical reactions and equations? What are the basic chemical reactions that we must keep in mind while writing examples or while solving the MCQ or HOTS type question? Okay, so if you if you are given the HOTS question and you do not have the remember the chemical reaction, then you are not in a position to solve the chemical reaction. So it is very important to learn the chemical reaction. Okay, so we are going to start the first chemical reaction, that is, okay, when zinc reacts with a sulfuric acid, it forms zinc sulfate plus hydrogen. Means in this chemical reaction zinc is a metal, you all know about it. So zinc reacts with H2SO4, that is sulfuric acid, it forms zinc sulfate plus hydrogen gas is evolved. It's H2. So this is the criteria. Okay, when zinc metal reacts with hydrochloric or sulfuric acid, it forms zinc sulfate plus hydrogen gas is evolved. So a chemical reaction is categorized by the evolution of hydrogen gas. So this is the very important chemical reaction. In whatever the chemical reaction that I have read that is not balanced, so you balanced it, and you must balance it so that you will learn how to balance it and you will be in practice. Okay, now the next chemical reaction, when magnesium reacts with hydrochloric acid, it forms magnesium chloride plus hydrogen. यानी कि जब मैग्नीशियम को हम रिएक्ट कराते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो ये बनाता है मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन. नंबर 3 जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैं इसको रेक्टेंगल के बॉक्स में बंद कर देता हूँ, ये आपको बहुत बहुत ध्यान रखने वाला होगा. ये जो केमिकल रिएक्शन है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा जाता है. ये देखिए क्या है इसमें, देखते हैं हम लोग. यानी कि जब सोडियम कार्बोनेट को आप सल्फ्यूरिक एसिड में रिएक्ट करोगे तो ये क्या बनाएगा, सोडियम सल्फेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पे इवोल्यूशन होता है. ओके, यानी कि ये जो केमिकल रिएक्शन है, सोडियम कार्बोनेट अगर जब रिएक्शन करेगा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ये बनाएगा सोडियम सल्फेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एक इवोल्यूशन होगा. तो यानी कि ये जो केमिकल रिएक्शन है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप मान के चल सकते हो. ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है. तो आपको इसको एक बार ध्यान से देखना है. ये आपका VVI है. ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. जब सोडियम कार्बोनेट, आपको फार्मूला बनाने आना चाहिए कैसे सोडियम कार्बोनेट होगा, कैसे हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड लिखते हैं हम लोग, कैसे सोडियम सल्फेट को लिखते हैं, कैसे वाटर, कैसे कार्बन डाइऑक्साइड. ये जो आप जो क्लास 9 में पढ़े हैं, कैसे फार्मूला को लिखा जाता है, कैसे कंपाउंड के फार्मूले को हम लोग लिखते हैं, वो हमने क्लास 9 में पढ़ा है. तो यहाँ पर ये सब में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए. यानी कि जो इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस के, तो यहाँ हमने डिस्कस किया.
अब हम लोग देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। बहुत ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम लोग ये फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट का यहाँ पे बात करेंगे। इससे क्वेश्चन तो एग्जाम में सीबीएसई के एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या क्या ये केमिकल रिएक्शन है हम लोग देखेंगे। यहाँ पे पोटेशियम आयोडाइड है। पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन के जब आप लेड नाइट्रेट के सॉल्यूशन में आप मिलाते हैं तो ये बनाता है पोटेशियम नाइट्रेट प्लस लेड नाइट्रेट आयोडाइड। ये एक प्रिसिपिटेट है। प्रिसिपिटेट के बारे में आप जानते हैं कि एक सॉलिड सब्सटेंस होता है। जब हम लोग 2 एक्वा सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं तो यहाँ पे एक एक्वा सॉल्यूशन में एक सॉलिड सब्सटेंस जो इनसॉल्युबल इन वाटर होता है वो बनता है। तो जब यहाँ पे हम लोग देखेंगे पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन को जब आप लेड नाइट्रेट के सॉल्यूशन में आप डालते हैं जो कि एक्वा सॉल्यूशन होगा, तो यहाँ पर जब पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन को जब आप लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन में जाते हैं तो एक येलो कलर का प्रिसिपिटेट फॉर्म होता है। उसका नाम क्या है हमारा? लेड आयोडाइड। लेड आयोडाइड नाम है। ये येलो इन कलर होता है, येलो इन कलर। ओके, तो बहुत केमिकल रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो हमारा है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बेरियम क्लोराइड। इरेज कर लेते हैं इसको। यहाँ पे देखते हैं बेरियम क्लोराइड को अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड में रिएक्ट कराते हैं तो ये बनाता है बेरियम सल्फेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहाँ पे जो बेरियम सल्फेट है ये वाइट कलर का प्रिसिपिटेट है। ये कौन सा कलर का प्रिसिपिटेट है? तो ये वाइट कलर का प्रिसिपिटेट है, वाइट। यहाँ पे जो बेरियम सल्फेट है ये वाइट कलर का प्रिसिपिटेट होता है जो कि एक सॉलिड सब्सटेंस होता है। नेक्स्ट जो एग्जांपल है, नेक्स्ट एग्जांपल हमारा क्या है? सोडियम क्लोराइड को जब आप सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में मिक्स करते हैं तो ये क्या बनाता है? सोडियम नाइट्रेट प्लस सिल्वर क्लोराइड। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है। ये जो लास्ट वाला केमिकल रिएक्शन है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे हम लोग CO2 गैस पास करा के ये जो केमिकल रिएक्शन है वो बना रहे हैं। तो ये केमिकल रिएक्शन क्या है हम लोग देखेंगे अभी। ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अगर आप में CO2 गैस पास कराते हैं तो जो कैल्शियम कार्बोनेट जो कि एक प्रिसिपिटेट है वाइट कलर का वो फॉर्म होता है, प्लस में वाटर फॉर्म होता है। ओके, ये जो केमिकल रिएक्शन प्रिसिपिटेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या क्या जो केमिकल रिएक्शन है तो यहाँ पे आपको विशेष ध्यान देना होगा कि केमिकल रिएक्शन को आप बार घर में लिखिए। एक बार देखिए कैसे प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, क्या इसका रिएक्टेंट है। तो यहाँ पे आप जब भी इसको प्रैक्टिस करेंगे तभी आपका हो सकता है। अब देखिए हम लोग देखने वाले हैं चेंज इन कलर। चेंज इन कलर का जो आपको ये ध्यान में देना होगा वो क्या है? चेंज इन कलर। या हमने जब आप साइट्रिक एसिड को पोटेशियम पर मैग्नेट के सॉल्यूशन में आप पोर करते हैं जो कि एक पर्पल कलर का सॉल्यूशन है तो ये आपका कलरलेस सॉल्यूशन बनाता है। किस तरह का सॉल्यूशन बनाएगा? तो कलरलेस सॉल्यूशन बनाएगा। तो साइट्रिक एसिड हमारा लेमन में मिलता है, जो हम लोग लेमन खाते हैं, लेमन में प्रेजेंट होता है साइट्रिक एसिड। ओके, तो यानी साइट्रिक एसिड लेमन में होता है। तो अगर आप जब उसको अगर पोटेशियम परमैंगनेट के सॉल्यूशन में आप ऐड करते हैं साइट्रिक एसिड को, जो पोटेशियम परमैंगनेट कलर होता है वो पर्पल कलर होता है। एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट इज द कलर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, और ये पूछता है जो पोटेशियम परमैंगनेट कलर है वो साइट्रिक पर्पल कलर है, तो कौन सा हम लोग यहाँ पे एसिड डालेंगे जो कि इसको डिस्कलर करता है, यानी कि वो साइट्रिक एसिड होगा। इस तरह का एग्जाम में आपको पूछा जाता है। तो बहुत ध्यान आपको देना होगा। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड। फॉर्मूला आप देख लीजिए SO2 होता है। सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मूला SO2 होता है। सल्फर डाइऑक्साइड को आप एसिडिफाइड पोटेशियम डिक्रोमेट जो कि ऑरेंज कलर का सॉल्यूशन होता है। तो अगर सल्फर डाइऑक्साइड गैस में आप पास कराते हैं तो ये बनाता है ग्रीन कलर सॉल्यूशन। ग्रीन कलर सॉल्यूशन यानी कि जो ऑरेंज कलर है वो ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो यानी कि इस तरह जो दो हैं वो चेंज इन कलर के एग्जाम्पल हैं। तो चलिए हम लोग आगे यहाँ पे अब आते हैं। चेंज इन टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चेंज इन टेम्परेचर की हम लोग बात करेंगे। एक्सोथर्मिक, दो तरह के चेंज इन टेम्परेचर होते हैं। एक एक्सोथर्मिक जो कि हीट रिलीज होता है, और एंडोथर्मिक जिसमें हीट एब्जॉर्ब होता है। यानी कि हम लोग देखते हैं कि जब आप कैल्शियम ऑक्साइड को, यानी इसको क्विक लाइन भी हम लोग बोलते हैं,
तो कैल्शियम ऑक्साइड को अगर आप CO2 गैस वाटर को ऐड करते हैं तो ये बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट एनर्जी होता है। आप यहाँ पे हीट यहाँ पे निकलता है बहुत लार्ज अमाउंट में। आप घर में देखोगे चूना जो कैल्शियम ऑक्साइड है, चूना को अगर आप पानी में डालते हैं तो ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा हीट निकलता है। वो प्रोडक्ट जो बाद में फॉर्म होता है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। यानी कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये और भी एग्जाम्पल है एक्सोथर्मिक रिएक्शन के, जैसे एक जो जाना माना एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे जो ग्लूकोज है C6H12O6 या O है प्लस O2, यानी कि ये जो उल्टा फोटोसिंथेसिस का उल्टा है, ये क्या बनाता है 6CO2 प्लस 6H2O प्लस हीट। ओके हीट है। यहाँ पर देखिए जब ग्लूकोज को और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये बनता है, ये जो हमारे बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन प्रोसेस में होता है, ये क्या बनाता है, ये बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर 6H2O। ओके यहाँ पे वाटर बनाएगा। तो यहाँ पर देखिए और प्लस में बहुत सारा हीट रिलीज होता है, और हीट हमें किस में मदद करता है, तो ये हीट हमको मदद करता है हमारे बॉडी को बॉडी टेम्परेचर में मदद करने के लिए। यहाँ पर एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एक एग्जाम्पल था। और हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन देख लेते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है तो देखेंगे जब बेरियम हाइड्रोक्साइड को अमोनियम क्लोराइड के सॉल्यूशन रिएक्ट कराते हैं तो ये बनाता है बेरियम क्लोराइड प्लस अमोनिया प्लस वाटर, और इसमें एनर्जी यहाँ पे ऑब्जर्व होता है, यानी कि इसको हम लोग को हीट देना होगा रिएक्शन को कराने के लिए। और एक एग्जांपल इसका क्या है हम लोग देखते हैं, जो एंडोथर्मिक रिएक्शन उसका एक और एग्जांपल है। जैसे कि यहाँ पे क्या एग्जांपल है, देखिए जब कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, यहाँ पे लिखना रहा हूँ, ये क्या बनाता है C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन, यही बनाता है हमारा प्रोडक्ट में। यानी कि इसमें क्या करना है, सनलाइट हमको देना पड़ रहा है, यानी कि इसको सनलाइट चाहिए रिएक्शन कराने के लिए। तो ये क्या हो गया हमारा एक एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब देखिए हम आप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में आप ये भी पढ़े होंगे कि चेंज इन स्टेट। तो चेंज इन स्टेट का ये क्या मामला है कि यहाँ पर देखिए व्हेन ए कैंडल बर्न्स देन इट्स वीक चेंजेस इनटू सॉलिड टू लिक्विड एंड देन इनटू गैस। यानी कि आप जब आप एक कैंडल को बर्न करते हैं तो उसका जो मोमबत्ती होता है वो विक के द्वारा पहले क्या होता है सॉलिड होता है, सॉलिड से लिक्विड, यानी कि लिक्विड से फिर गैस में कन्वर्ट होता है। यानी कि देखिए आप पहले सॉलिड था, सॉलिड से लिक्विड हुआ, लिक्विड से यहाँ पे गैस हो गया। यानी कि इट मीन्स क्या है, पहले सॉलिड था फिर लिक्विड फिर गैस, यानी कि अपना चेंज इन स्टेट। तो यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि वो उसमें केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो ये जो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस के जो इंपॉर्टेंट सीरीज का ये पार्ट 1 है, तो यानी कि पार्ट 2 जल्दी मैं अपलोड कर दूंगा और उसमें और भी इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस होंगे। तो उसके लिए क्या आपको करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, कमेंट कर लीजिए, ताकि आपको जो लेटेस्ट वीडियो का अपडेट है वो आपको मिलता रहे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन। थैंक यू।